So hello everybody, welcome to Chemical Data. So in this video, we will discuss about the bond angles of different molecules. So this is quite an important topic of this chapter. Questions are often asked from here, though not as important as the MOT or the shapes and hybridization, but this topic is important in itself. So let's get started. So let us look at first what a bond angle is. Suppose we have a molecule like OH2, or we can call it as H2O, or the water that we drink, the water molecule. Now, this molecule can be written as oxygen with two hydrogens on two sides and the two lone pairs. Now, what is the bond angle? The bond angle is this. This is called the bond angle. Similarly, if we have a molecule, say A, B, C, and D, where A is the central atom. So you can write it as A with B, then C, then D. So in this case, we will be having like a number of bond angles. Say in this case, however, we had only one bond angle, the hydrogen, oxygen, hydrogen bond angle. In this case, we have this bond angle, we have this bond angle, we also have got this bond angle. So three bond angles we have got here. So the angle between the three atoms is basically called, that are the three moieties are called the is called the bond angle. Now, okay. Now there are several factors that affect the bond angle in a system. We will discuss one of them one by one. So firstly is the state of hybridization. The first thing is the state of hybridization. Okay. Now let's look at the simplest ones now at the beginning. We have got sp3, we have got sp2, and then sp. In sp3 we have got 75% of p character and 25% of s character, and then sp2 we have got 33% s character and 60% p character. So, and in this case, sorry, it's going to be sp, not sp3. In case of sp, we have equidistribution, that is 50% of s and 50% of p. अभी देखो, हम ये जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है, that is directly varying with the percentage s character. That is, the more the s character in a bond, higher will be the bond angle. So we can say that the bond angle of sp will be higher than that of sp2, than that of sp3. And as for the exact values, we can write it as sp will be 180 degree, this will be around 120 degree, and sp3 is 109 degree, around, not the exact, but around 109 degree. Done. Okay. Now there are several other factors that affect the hybridization. Okay, let's get some example of this thing first before we move on to the next thing that influences the bond angle. Say we are comparing CO2 molecule versus the CH4 molecule. Now the CO2 molecule looks something like this, and the CH4 molecule has a structure like this. The first thing first, let's look at the hybridization. In this case, the carbon molecule is sp hybridized, and in this case the carbon molecule is sp3 hybridized. So we have pretty well seen in this case that sp is having a higher bond angle than sp3. So we can quite easily say that CO2 is having a higher bond angle than CH4, because in this case the bond angle is around 109 degree, and in this case the bond angle, like this bond angle I'm talking about, 109 degree, and in this case it's a linear molecule almost equal to 180 degree, and this is a tetrahedral molecule having a bond angle of 109 degree. Fine. Okay, now let's look at the second category now that influences the bond angle. It is the lone pairs. The lone pairs, I must say, play a very important role in determining the bond angle. And how do they influence the bond angle? The number of lone pair
varies inversely with the bond angle. That is, whenever you increase the number of lone pairs on a particular species, the bond angle will decrease. Now let's look at this. How? Say we have a bond between NH3 and a bond of NH4 plus. Now, in both the cases, we have bonds between nitrogen and hydrogen. In this case, we have a lone pair, and in this case, there is no lone pair. This is going to be behind the plane though. Okay. Also, one more thing to understand. In this case, nitrogen also is sp3 hybridized, and in this case, it's sp3 hybridized as well. So that is going by the hybridization. Both of them should be having a bond angle of around 109 degree. But my friend, that is not the case. This has got a bond angle of around 109 degree. However, in this case, the bond angle is somewhat lesser than 109 degree. Why so? Why so? See, in this case, this is a lone pair. As I've said, that the bond angle is varying inversely with the lone pair. देखो दोस्त, इधर लोन पेयर है और लोन पेयर का हमें मालूम है लोन पेयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. Volume is high. Why the volume is high? The volume is pretty high because the lone pair is under the control of only one nucleus. ओनली वन न्यूक्लियस. देखो, इधर जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन दोनों के अंडर कंट्रोल में है. तो ये दो इलेक्ट्रॉन कुछ तहलका मचा नहीं पाएंगे. लेकिन ये जो अपना लोन पेयर है, जो नाम से ही सुनाई दे रहा है, इस काफी लोनली और लोन. सो ये बस एक न्यूक्लियस के कंट्रोल के अंडर है. तो अभी दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस जितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, एक न्यूक्लियस तो उतना अच्छा कर नहीं पाएगा. तो इसलिए क्या होता है, ये लोन पेयर बहुत फैला हुआ रहता है. दिस लोन पेयर इज प्रीटी मच स्प्रेड आउट इन द स्पेस. देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन इज इन अ कंट्रोल्ड मैनर, इज अ कंट्रोल मैनर. हाउ इन दिस केस लोन पेयर स्प्रेड आउट. तो स्प्रेड आउट होने की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है. अभी इधर दो इलेक्ट्रॉन है जो कि लोन पेयर के जैसे है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है एज बॉन्ड पेयर्स, सेम फॉर दिस बॉन्ड एंड सेम फॉर दिस बॉन्ड. Now, these are electrons, these are electrons, these two are also electrons. Now, an electron will repel against another electron because both of them are negatively charged. So, this lone pair is repelling this bond pair is repelling this bond pair, and this bond pair is again repelling this bond pair. But the difference is the lone pair bond pair repulsion is higher than the bond pair repulsion. We have already studied this in some other video, in one of the previous videos. So in case you haven't checked that out, please check the video out in the playlist. सो ये जो रिपल्शन है ये बहुत ज़्यादा होता है. तो ये लोन पे क्या करता है, इन दो बॉन्ड पेयर को धकेलते धकेलते बहुत करीब ला देता है. जैसे देखो, इधर तो सारे ही बॉन्ड पेयर है, तो कोई किसी को धक्केगा, मतलब नोबडी इज गोइंग टू पुश द अदर वंस अपार्ट. कोई किसी को धक्का नहीं देने वाला. लेकिन इस साइड में, इस NH3 में अपने पास एक लोन पेयर है, यानी दो इलेक्ट्रॉन से जो दूसरे को धक्का दे रहे हैं. तो धक्का देने के लिए ये जो है ये इस साइड शिफ्ट होता है और ये भी इस साइड शिफ्ट होता है, और अपने को मिलता है समथिंग सिमिलर टू दिस, जहाँ ये एंगल काफ़ी घट चुका होता है. समझ में आया? क्योंकि ये इन बाकी दो हाइड्रोजन्स को धक्का मार मार के ऐसे स्क्वीज कर चुका है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो गया है. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर इज वेरिंग इनवर्सली विद द बॉन्ड एंगल. देखो, अभी अगर इसका हम एक और एग्जांपल देखें, चलो H2O मॉलिक्यूल को देख लेते हैं और एमोनिया मॉलिक्यूल को देख लेते हैं. देखो, इस एमोनिया और H2O मॉलिक्यूल दोनों में जो सेंट्रल एटम है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इधर ऑक्सीजन और इधर नाइट्रोजन, दोनों sp3 है. लेकिन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एमोनिया में बस एक ही लोन पेयर है और वाटर में अपने पास दो लोन पेयर है. मतलब क्या,
इधर जो धक्का बुक्की हो रहा है अमोनिया में, वो बस एक ही लोन पेयर के लिए हो रहा है, और इधर धक्का बुक्की हो रहा है वो दो लोन पेयर के लिए हो रहा है। तो कहाँ ज़्यादा शिफ्ट होगा? प्रीटी एविडेंट, वाटर में ज़्यादा शिफ्ट होगा इस इन बॉन्ड्स का। तो इधर जो बॉन्ड एंगल है वो काफ़ी छोटा होगा, मतलब एमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। समझ में आया? यहाँ हम फिर से प्रूफ कर रहे हैं कि जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड एंगल है वो इन्वर्सली वैरी करते हैं। तो देखो अभी हम कुछ एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करेंगे। एज फॉर दी प्रीवियस क्वेश्चन वो हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल ओनली कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल्स एंड द मेन कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि वीडियो डज नॉट बिकम बिट टू लॉन्ग। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता बच्चों को। तो आई विल मेक श्योर द वीडियोज आर क्रिस्प एंड concise, and we'll focus mostly on the concepts in this video and maybe a few examples as we move on, and in the next video we will focus on the previous questions in details. तो चलो, let's look at the third point now. जो थर्ड पॉइंट है वो है सेंट्रल एटम, यानी सी ए, सेंट्रल एटम। देखो, let's talk about the H2O molecule, H2O molecule, and also let's talk about this thing. चलो, is there are some general examples. Let's not take some specific ones. Let's look at the general examples at first. Okay, देखो, सपोज अपने पास एक मॉलिक्यूल है AB2, और दूसरा मॉलिक्यूल है अपने पास CD2, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो A का ज्यादा है C से। दिस इज व्हाट वी नो सो फार। तो देखो दोस्त, हर बॉन्ड में होता है दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी है दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी है दो इलेक्ट्रॉन। एक काम करते हैं, इसको हम बी बना देते हैं। लेट्स मेक इट बी, let's make it b, so that we can maintain the parity. Let's make it b. Okay, now look at this. तो हर एक बॉन्ड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी होंगे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। देखो, अभी ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा है, और बी से भी ज्यादा है, और बी से भी ज्यादा है, और ए और बी दोनों, ए और सी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इधर जो अपने दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ए के काफ़ी करीब आ जाएंगे, ए के काफ़ी करीब आ जाएंगे। और इधर जो है, क्योंकि सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सी जाएगा, लेकिन उतना करीब भी नहीं जाएगा। देखो इधर इलेक्ट्रॉन एकदम ए के ऊपर चढ़ के बैठा है, क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ऊपर ले लेगा। सी भी लेगा, क्योंकि सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, क्योंकि बट इट्स नॉट हाई एनफ सो एज टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन टॉप ऑफ इट। इसका उतना ज़्यादा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाए। अभी देखो, तुमको कहाँ लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब है? यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर दिस फार अवे, whereas in this case the electrons are this far away. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज्यादा करीब है? दिख रहा है क्लियरली कि AB2 में इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर, इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन काफी ज्यादा होगा। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी पास है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्शन होने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो ओपन अप हो जाएगा, वो ओपन अप हो जाएगा, मतलब हमको ये दिखने में कुछ ऐसा मिलेगा, बॉन्ड एंगल जो पहले था उससे ज़्यादा बन जाएगा, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि देखो, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से एक ही करीब है, लेकिन अभी बॉन्ड एंगल बनने की वजह से दे आर अ बिट मोर फार अवे। इधर जितने करीब थे, इधर उससे ज्यादा है, तो रिपल्शन थोड़ा लोअर हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो सिस्टम अभी स्टेबल है। समझ में आया? और इधर देखो, इधर सी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उतना ज़्यादा तो है नहीं, तो सी अपने इसको हम देते हैं थीटा 1,
और इसको बोलते हैं थीटा टू। और तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो चार इलेक्ट्रॉन है दो बॉन्ड के, वो उतने करीब तो आ नहीं रहे क्योंकि सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा है नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्शन ऑलरेडी लो है, रिपल्शन ऑलरेडी लोअर, तो बॉन्ड एंगल उतना शिफ्ट होगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं इधर क्लियरली कि थीटा वन इज क्लियरली मोर देन थीटा टू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अपना कंक्लूजन, कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरिंग डायरेक्टली विद द बॉन्ड एंगल, ये हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। चलो अभी एक और चीज़ देखते हैं, ये हमने देख लिया सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में। अभी देखते हैं सेंट्रल एटम के साइज के रिस्पेक्ट में। अभी देखते हैं सेंट्रल एटम के साइज के रिस्पेक्ट में, सेंट्रल एटम के साइज के रिस्पेक्ट में। फिर से कि हम देखते हैं सेम एग्जांपल, देखो एक हो गया ए बी टू, और समझो दूसरा हो गया सी बी टू, दूसरा हो गया सी बी टू। चलो हम वही करते हैं। अभी देखो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो था वो सी से ज़्यादा था, यानी हम बोल सकते हैं कि साइज जो है वो ए का कम है सी से, क्योंकि ए का साइज कम है तभी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। चलो अभी ए का साइज कम है, ए का साइज कम है और सी का साइज ज़्यादा है, सी का साइज ज़्यादा है। तो मतलब क्या होगा, अगर सी का साइज ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। चलो इसको ठीक से बनाते हैं। अगर सी का साइज ज़्यादा हुआ तो उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, मतलब सी इधर, इधर बी। अगर सी बड़ा हुआ, तो उसका मतलब इसको हम देख लेते हैं कि सपोज सी है किसी थर्ड पीरियड के एलिमेंट और ए है किसी सेकंड पीरियड के एलिमेंट। तो क्योंकि सी का साइज ज़्यादा है तो सी का बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। और अगर सी का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन भी कम होगा और बॉन्ड एंगल भी कम होगा। समझ में आया? मतलब हम ये चीज़ दोनों तरफा बोल सकते हैं, बोथ फ्रॉम द aspect of electronegativity and also from the size respect, समझ में आया? जैसे कि देखो अगर हम कंपेयर करें NBr3 वर्सेस PBr3, ठीक है। देखो अगर अभी हम साइज से देखें तो नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, लोन पेयर है इधर, और इधर अपना क्या है, फॉस्फोरस है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है फॉस्फोरस का, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा बॉन्ड। तो अभी इधर तुम दो इलेक्ट्रॉन लगा दो हर एक बॉन्ड में, तो क्योंकि बॉन्ड बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन में आपस में जो रिपल्शन है वो कम होगा, यानी बॉन्ड एंगल भी कम होगा, देखो अगर 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 ये लोन मतलब बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन से वो अगर वो दूर दूर रहे तो उनमें रिपल्शन कम होगा। अगर रिपल्शन कम हुआ तो वो करीब आ सकते हैं, और करीब आया तो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाएगा, अब इधर देखो, इधर तो बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स भी काफ़ी करीब करीब है, और करीब करीब है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये ब्रोमीन से ये शिफ्ट कर जाएंगे, ब्रोमीन जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे एक दूसरे से दूर, यानी ये जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। यानी ये हम साइज के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, जैसा कि हमने इस केस में बोला था। एंड दिस थिंग कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे कैसे देखो देखो फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है देन फास्फोरस, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बीच मतलब करीब होगा, नाइट्रोजन के करीब होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के करीब हुआ तो क्या होगा,
तो यहाँ जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो बहुत कम होगा। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल खुल जाएगा सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। समझ में आया? देखो, हम जैसे भी कर ले, हम घूम फिर के लेकिन उसी चीज़ में आ रहे हैं। हम साइज के रिस्पेक्ट में देखें या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में देखें, सीन वही आ रहा है। सीन क्या आ रहा है कि इनवर्ट के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत करीब करीब आ रहे हैं, और करीब करीब आने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ रहा है, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स अवे। और PBr3 में क्योंकि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स उतने करीब आएंगे नहीं, फास्फोरस के दूर दूर रहेंगे जैसा इधर है, और डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है, रिपल्शन भी कम है, और रिपल्शन कम है तो ये अपने करीब करीब आ पाएंगे, दे कैन कम टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर टूवर्ड्स ईच अदर आ गए तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। मतलब हम किसी भी तरह से देखें, रिजल्ट अपना एक ही आने वाला है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं थोड़ा बहुत साइड एटम की तरफ, साइड एटम की तरफ। अभी हम साइड एटम का भी वही देखेंगे। पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर देखेंगे उसका साइज का इफेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? चलो चलो, पहले देखते हैं एक जनरल एग्जांपल। सपोज लेते हैं Ab2 और Cb2। लेकिन अभी इस केस में हम थोड़ा अलग देखेंगे। जैसे कि इधर थोड़ा सीन हम चेंज कर देंगे। जैसे कि इधर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। समझ में आया? इधर साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, हर एक बॉन्ड में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इधर बी का हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ये टूवर्ड्स बी शिफ्ट हो जाएगा। अगर टूवर्ड्स बी शिफ्ट हो गया, अगर टूवर्ड्स बी शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, देखो जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। अभी अगर मैं इसको देखो थोड़ा अगर ब्लू से बनाऊं, अगर एक ही करीब होता तो क्या होता, अगर एक ही करीब होता तो इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम होता। अगर बी के साइड में आएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर दोनों में बढ़ गया तो क्या होगा, तो रिपल्शन घट जाएगा, और रिपल्शन घट जाएगा तो क्या होगा, ये दो करीब आ पाएंगे, कम क्लोजर। अगर कम क्लोजर आ गया तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अभी देखो इधर, इसको बोलते हैं थीटा 1। अभी देखो इधर, इधर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक से ज़्यादा था, और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन था वो बी के करीब था, लेकिन इधर जो है Cb2 के केस में, इधर इलेक्ट्रॉन तो एकदम बी के ऊपर चढ़ के बैठा है, इधर तो इलेक्ट्रॉन तो बी के ऊपर चढ़ के बैठा है। तो देखो यार, तो दोस्त तुम बताओ मेरे को देख के, यहाँ Ab2 के केस में जो इलेक्ट्रॉन थे वो करीब है या फिर यहाँ करीब है? दिख ही रहा है भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन एकदम बी के सर के ऊपर चढ़ के बैठा है। तो इधर क्या हुआ, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो क्या होगा, रिपल्शन घट जाएगा। रिपल्शन घट जाएगा तो कम क्लोजर, इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर, सिंस इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर, and since electrons can come closer, तो बॉन्ड एंगल भी, उसको बोला थीटा 2, तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। अभी देखो, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? देखो, इस केस में यहाँ रिपल्शन कम था, करीब आ रहा है, लेकिन यहाँ रिपल्शन कुछ ज्यादा ही कम था। Cb2 के केस में रिपल्शन कुछ ज़्यादा ही कम था। क्यों? क्योंकि C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम था, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम B के ऊपर चढ़ के बैठा है, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा था, रिपल्शन कम था, बॉन्ड्स करीब आ रहे हैं और बॉन्ड एंगल घट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1।
समझ में आया? क्योंकि सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी का ज्यादा है। इधर भी ए से बी का ज्यादा ही है, लेकिन इधर बी का ज्यादा ज्यादा है। समझ में आया? लाइक हेयर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच हायर। यहाँ सी का जो कम होने का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है। तो बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एकदम खींच के रख रहा है, और खींचे रखा हुआ है, इसीलिए रिपल्शन कम हो रहा है और बॉन्ड करीब करीब आ पा रहे हैं और बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। समझ में आया? तो यहाँ हम बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइड एटम के साइज के रिस्पेक्ट में। साइज के रिस्पेक्ट में तो इधर हम बोल सकते हैं, देखो इधर फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल उतना घटेगा। समझ में आया? उतना घटेगा। अभी साइज देखो, इधर साइड एटम का साइज जितना बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल भी उतना बढ़ेगा। ये काफी इजी है समझने में। हालांकि ये भी इजी ही था, लेकिन ये और भी इजी है। क्योंकि देखो, समझ लो यहाँ हम लगा दिया AB2 और यहाँ लगा दिया AC2। और साइज के रिस्पेक्ट में चलो हम बोल देते हैं कि बी का साइज सी से ज्यादा है। अगर बी का साइज सी से ज्यादा है तो क्या होगा, ये दोनों बी काफी बल्कि हैं। इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके लिखें, हाँ, बी का साइज ज्यादा है। तो अभी देखो, इन बी में रिपल्शन होगा और बी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, बी में भी अपने कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा, इन दोनों में झमेला होगा। इन दोनों में झमेला होगा क्योंकि बी अपने में बहुत बड़ा है। तो क्या होगा, इस झमेले को कम करने के लिए बी विल शिफ्ट दिस साइड एंड दिस बी विल शिफ्ट दिस साइड, एंड इवेंचुअली जो बॉन्ड एंगल जो इतना बड़ा था वो बन जाएगा अपना कुछ ऐसा। बॉन्ड और भी खुल जाएगा और बॉन्ड एंगल है वो और भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? कि साइड एटम इधर कि साइड एटम का साइज बढ़ने में रिपल्शन बढ़ता है और रिपल्शन बढ़ने में बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। इधर देखो, सी है एकदम छोटा इंसान, नाजुक सा इंसान। तो क्या होगा, सी छोटा है और नाजुक है, यानी यानी सी के लाइक यहाँ रिपल्शन थोड़ा कम ही है क्योंकि सी अपने में छोटा है। तो रिपल्शन कम है तो चलो इधर कुछ बॉन्ड बड़ा होने का कुछ सीन तो है नहीं। तो इधर हम बोल सकते हैं कि थीटा 1 थीटा 2, कि थीटा 1 विल बी मोर देन थीटा 2। एंड इसका एक और एग्जांपल देखना है तो वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ OH2 वर्सेस OCl2। तो यहाँ H लगा दो, यहाँ Cl लगा दो। अभी देखो यार, Cl का, अभी देखो इधर सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन ही है। लेकिन साइड एटम जो है, एक में क्लोरीन है या दूसरे में हाइड्रोजन है, और क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। तो इधर रिपल्शन अपनों में ज्यादा होगा तो बॉन्ड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम बोल सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल जो है थीटा इस H2O से ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। समझ में आया? हालांकि इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका भी है, लेकिन वो हम विल सी दैट इन सम अदर वीडियो मे बी। तो इसका बॉन्ड एंगल OCl2 का ज्यादा होगा। समझ में आया? चलो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज वेरी ड्रास्टिक। क्योंकि देखो, इधर हम दो चीज देख रहे हैं, एक देख रहे हैं साइड एटम का साइज का इफेक्ट जो पड़ रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं सेंट्रल एटम का साइज का जो इफेक्ट पड़ रहा है। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने में घटने में बॉन्ड एंगल में इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन और सेंट्रल एटम का भी छोटा बड़ा होने में बॉन्ड एंगल में इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल एटम का छोटा बड़ा होने में बॉन्ड एंगल में जो इफेक्ट पड़ेगा वो वो बहुत ड्रास्टिक होगा। समझ में आया? क्योंकि सेंट्रल एटम छोटा बड़ा होने में बॉन्ड एंगल जो है वो बहुत तेजी से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, चेंज बहुत ड्रास्टिक होगा। ठीक है, चलो अभी हम एक और चीज देख लेते हैं जो कि हम बोलते हैं ड्रेगो मॉलिक्यूल्स। अभी दोस्त ड्रेगो मॉलिक्यूल क्या है?
ड्रेगो मॉलिक्यूल एक खास किस्म का मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम पकड़ लें तो हाइड्राइड्स ऑफ पीरियड 3 के ऑनवर्ड्स, लाइक PH3, SH2, ऐसे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पीरियड 3 या फिर उससे बड़े पीरियड के जो हाइड्राइड्स है उन्हें हम बोल, वो एग्जाम्पल्स होते हैं ड्रेगो मॉलिक्यूल्स के। अभी ये ड्रेगो मॉलिक्यूल्स का जो स्पेशलिटी है वो है कि इन ड्रेगो मॉलिक्यूल्स में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाते हैं, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये तो अपना है जो कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन इन कॉन्सिक्वेंस के लिए जो कॉज है वो क्या है, वो क्या है वो अभी हम स्टडी करेंगे। देखो देखो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का और PH3 का। NH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें यार नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा है, इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर काफ़ी कम है। लुईस बेसिक यानी लोन पेयर जो डोनेट करने का जो टेंडेंसी है, नाइट्रोजन में भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी बहुत कम है। इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। समझ में आया, समझ में आया। अभी ये क्यों हो रहा है, देखो पहली बात जो है इसमें यार हाइब्रिडेशन हो क्यों नहीं रहा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू आंसर, व्हाई इज देयर नो हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PH3। चलो इसको देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन जो अपना था 2s2 2p3, यानी ऐसा कुछ था। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन बेटा अपना एनर्जी खर्च करके, वो अपना एनर्जी खर्च करके मतलब एनर्जी दे रहा है प्लस एनर्जी, एनर्जी खर्च करके ये 1s और 3p को मिक्स करके sp3 बना रहा है, sp3 बना रहा है इधर। लेकिन एनर्जी खर्च कर रहा है नाइट्रोजन अपना, क्योंकि उसको मिक्स करना है। देखो यार तुम मैगी खा रहे हो ठीक है, लेकिन मैगी खाने के लिए, मैगी बनाने के लिए भी तुमको लेकिन एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इंडक्शन में बनाओ इलेक्ट्रिसिटी है, गैस में बनाओ गैस है, किसी में भी बना लो एनर्जी यू हैव टू स्पेंड। तो इधर sp3 बन गया। अभी अभी क्या हो रहा है, अभी हाइड्रोजन आएगा और बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन आएगा और बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड बनाने के बाद सिस्टम में जो है वो एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सिस्टम गुरु स्टेबल कब होगा, अगर नाइट्रोजन का इनिशियल एनर्जी हो समझो 100, ये एनर्जी इनपुट कर रहा है 20, मतलब अभी उसका एनर्जी हो गया 120। अभी अगर बॉन्ड जो बन रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर एनर्जी उसका रिलीज हो रहा है समझो 50, सो 120 से 50 घटा दो तब भैया बन जाएगा 70। मतलब इनिशियली इनिशियली नाइट्रोजन का था 100, अभी बन गया 70, मतलब उसका जो स्टेबिलिटी है सिस्टम का वो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बढ़ रहा है, एनर्जी घट रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। क्यों, नाइट्रोजन खर्च कर रहा है एनर्जी, फॉर द टाइमिंग शायद 120 हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो जब बॉन्ड बनाएगा तो उसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो रिलीज होगा, जो बॉन्ड एनर्जी है वो रिलीज होगा, और और एनर्जी घट जाएगा एंड विल बिकम मोर स्टेबल। नाउ लेट्स लुक एट द PH3 मॉलिक्यूल। ये है अपना भैया 3s2 3p3, बना दो, भर दो 3 इलेक्ट्रॉन, कर दो हाइब्रिड, इसका भी ले लेते हैं एनर्जी 100 ही था, भर दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी भर दो एनर्जी, कर दो हाइब्रिडाइज, भर दो 20 एनर्जी, तो अभी बेटा बन गया अपना sp3, एनर्जी हो गया 120, बन गया 4, बन गया 4 और sp3 ऑर्बिटल्स। अभी तुम इधर बॉन्ड बनाओ, अभी बेटा तुम इधर बॉन्ड बनाओ, देखो हाइड्रोजन लगा दो,
हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। तो अभी अपना बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, एनर्जी रिलीज हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रहा है। NH3 के केस में जो अपना एनर्जी रिलीज हो रहा था वो था 50, इधर रिलीज हो रहा है एनर्जी 5, 50 से 5। अरे गुरु ये क्या हो रहा है दोस्त, ये तुमने क्या ही बवाल मचा दिया। देखो NH3 के केस में अपना हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा था, इट वाज यूजिंग द 1s ऑर्बिटल, यूजिंग द 1s ऑर्बिटल, समझ में आया। और नाइट्रोजन जो यूज कर रहा था वो था अपना सेकेंड ऑर्बिटल 2s और 2p। मतलब ये जो sp3 बना था वह बना था अपना सेकेंड जो ऑर्बिटल है वो यूज करके 2s और 2p। यानी 2s मतलब जो सेकेंड पीरियड है और जो फर्स्ट 1s है, उन दोनों में ओवरलैप काफी अच्छा हो रहा था। ओवरलैप ओवरलैप वाज गुड, क्योंकि टू टू एस 2p और 1s के बीच में जो ओवरलैप है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन लोगों का साइज मैच होता है, इन लोगों का साइज मैच होता है, समझ में आया। तो इसीलिए जो इन्होंने रिलीज हो रहा था वो अच्छा खासा हो रहा था, क्योंकि बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग था, स्ट्रांग बॉन्ड था, स्ट्रांग बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन इधर गुरु तुम यूज कर रहे हो अपना थर्ड पीरियड का ऑर्बिटल, लेकिन हाइड्रोजन पड़ा है गरीब इंसान 1s लेके। देखो 3sp3 मतलब sp3 जो बन रहा है तुम्हारा इधर, जो इधर तुम्हारा sp3 बन रहा है वो साइज में बड़ा होगा, कि वो यूज कर रहा है थर्ड ऑर्बिटल का, सॉरी अपना थर्ड पीरियड का ऑर्बिटल्स, तो ये हो गया बड़ा। और यहाँ अपना लुल्लू सा छोटा सा 1s। इधर ऑर्बिटल ओवरलैप कितना अच्छा हो रहा है बे, बहुत गंदा हो रहा है इधर तुम ऑर्बिटल ओवरलैप, बहुत गंदा हो रहा है। मतलब बॉन्ड जो है वो काफी वीक है, बॉन्ड जो है वो तुम्हारा काफी वीक है। और और क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड वीक है तो उसका जो बॉन्ड एनर्जी है, तो तुम्हारा जो बॉन्ड एनर्जी है जो जो रिलीज हो रहा है वो भी काफी कम है, तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी भी काफी कम है। तो कितना हो रहा है रिलीज, 5, मात्र 5। तुम्हारा हो गया था 120 बबुआ, अभी तुम इधर खड़े हो 115 में, अभी तुम इधर खड़े हो 115 में। मतलब अभी बताओ फास्फोरस का ओवरऑल लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, एनर्जी में गेन हो रहा है बे, लेकिन सिस्टम जो है वो बन रहा है अनस्टेबल, सिस्टम जो है वो बन रहा है तुम्हारा अनस्टेबल, समझ में आया। मतलब नाइट्रोजन इधर बिजनेस के लिए अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा था, इधर प्रॉफिट भी हो रहा था, और नाइट्रोजन का बिजनेस प्रॉफिट में था, इसका लाइफ सेट है, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा था। इधर हाइड्रोजन ने उसको धोखा दे दिया फास्फोरस को, वो बेचारा इन्वेस्ट कर बैठा अपना पैसा, अपना एनर्जी उसने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन देख रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हाइड्रोजन ने उसको धोखा दे दिया, उसके साथ हाइड्रोजन का संबंध अच्छा नहीं बन रहा, ओवरलैप बहुत गंदा हो रहा है, पुअर ओवरलैप हो रहा है, पुअर ओवरलैप हो रहा है, धोखा दे दिया हाइड्रोजन ने इसको। तो बॉन्ड जो बन रहा है बॉन्ड काफी वीक बन रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी काफी कम है, तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल, और नाइट्रोजन का बिजनेस चला गया घाटे में, सॉरी फास्फोरस का बिजनेस चला गया घाटे में। तो अभी दोस्त फास्फोरस क्या चाहेगा, अभी अगर लॉस हो रहा है तो फास्फोरस तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो फास्फोरस बोल दिया हाइड्रोजन को, यार मैं तो हाइब्रिड बनाऊंगा नहीं, मैं अगर बॉन्ड बनाऊंगा तो प्योर पी से बॉन्ड बनाऊंगा, प्योर पी से तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा। ये हो गया अपना 3s, और ये रहा अपना 3p। तो उसने हाइड्रोजन को बोल दिया बबुआ मैं तो हाइब्रिड करने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं कितना भी हाइब्रिड कर लूं तुम तो अपना बॉन्ड वीक ही बनाओगे, तुम तो ओवरलैप मेरे से पुअर ही करोगे। मैं एनर्जी देके हाइब्रिड कर लूंगा, लेकिन तुम मेरे को धोखा देके बॉन्ड बना दिया वीक, और बॉन्ड बन गया वीक तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल। लेकिन भाई मैं इस टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा नहीं, जो है सो है, 3p है, 3p है, तुमको अगर बॉन्ड बनाना है तो p और p के साथ ही बनाना है। तो ये जो pH3 अपना मॉलिक्यूल हो गया, ये यहां से हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, अनहाइब्रिडाइज्ड, समझ में आया। और इधर जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है प्योर p, प्योर 3p के साथ हाइड्रोजन का 1s, समझ में आया। तो ठीक है,
चलो, अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। तो ये जो अपना बॉन्ड है, वो बॉन्ड किससे बन रहा है भाई? ये बॉन्ड किससे बन रहा है? ये बॉन्ड अपना बन रहा है प्योर पी से। प्योर पी से, यानी इन तीनों बॉन्ड में ही एस कैरेक्टर वेरी लो है ही नहीं। एस कैरेक्टर जीरो, एस कैरेक्टर 0% एस कैरेक्टर है। अगर हो भी तो करीब 1-2% होगा। जो भी है बहुत कम है, तुम जीरो पकड़ के चलो, यू टेक इट एज जीरो। तो एस कैरेक्टर हो गया जीरो। और अभी हम एक चीज जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इधर एस का बढ़ना छोड़ी दो, इधर है ही 0%, है ही 0%। अगर 0% एस होगा तो बॉन्ड एंगल की जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? बॉन्ड एंगल जो है थीटा वेरी लो। इन दिस केस थीटा विल बी वेरी लो, करीब करीब 94 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, देख के लग रहा था भाई sp3 है, देख के लग रहा था sp3 है, 109 के करीब होगा, लेकिन भाई ये हो नहीं रहा भाई, बन रहा है 94 के करीब, क्योंकि ये sp3 तो है नहीं, इसमें इसका एक तत्व कुछ है नहीं, पूरा ही p है, पूरा ही p है, और बॉन्ड एंगल होगा 94 के करीब। और देखो, ये जो अपना लोन पेयर है, ये जो अपना लोन पेयर है, ये तो अपना लोन पेयर है, वो किस में है? वो पड़ा है एस ऑर्बिटल में, प्योर एस में पड़ा है। जैसे कि इधर लोन पेयर है, वो प्योर एस में पड़ा है। ठीक है, प्योर एस में पड़ा है। अभी देखो, मैंने बोला था कुछ देर पहले, उसका लुईस बेसिक कैरेक्टर या फिर डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर विल बी विल बी वेरी पुअर, विल बी वेरी पुअर। क्यों? क्योंकि देखो, जो लोन पेयर है वो है अपने प्योर एस ऑर्बिटल में। द लोन पेयर इज रिसाइडिंग इन अ प्योर एस ऑर्बिटल। अभी एस ऑर्बिटल का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? इट विल होल्ड ऑन टू द लोन पेयर वेरी स्ट्रांगली। और अगर लोन पेयर को काफी ताकत से पकड़ा हुआ है, अगर लोन पेयर को काफी ताकत से टाइटली पकड़ा हुआ है, तो लोन पेयर का डोनेट होगा इजीली? कभी नहीं होगा। तो नॉट इजीली डोनेटेड, सो लोन पेयर नॉट इजीली डोनेटेड। तो उसका जो लुईस बेसिक कैरेक्टर है एल बी, यानी लुईस बेसिसिटी, या फिर द डोनेशन ऑफ लोन पेयर है, वो काफ़ी पुअर होगा। समझ में आया? तो ड्रेगो मॉलिक्यूल से क्या होता है? तो ड्रेगो मॉलिक्यूल से क्या सीन होता है? इन लोगों का देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, पढ़ लिया। प्योर एटमिक ऑर्बिटल पढ़ लिया। बॉन्ड एंगल काफी लेस, वो भी पढ़ लिया। और लुईस बेसिक कैरेक्टर वो भी पढ़ लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस ड्रेगो मॉलिक्यूल का, जो होगा अपना, देख लो, SH2। इसको कंपेयर करते हैं कि H2O से, फिर OH2 से। ये तो अपना ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन तो sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा कम है, 109 से थोड़ा कम है लोन पेयर के लिए। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर के लिए बॉन्ड एंगल घट जाता है। और इधर दो लोन पेयर है, एक नहीं दो लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल काफ़ी घट जाएंगे 109 से। लेकिन यहाँ जो SH2 है, ये रह गया अपना थर्ड ऑर्बिट, थर्ड पीरियड का सल्फर, यानी दिखने में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो यही वही सीन है, बॉन्ड बनाएगा लेकिन बॉन्ड वीक होगा, और जो एनर्जी इसने इन्वेस्ट किया था हाइब्रिड करने में वो रिकवर तो होगा नहीं। तो तो बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि ये अभी बनाएगा ड्रेगो मॉलिक्यूल, क्योंकि जो एनर्जी ये इन्वेस्ट करेगा sp3 बनाने में, वो एनर्जी वो रिकवर तो होगा नहीं। तो सिस्टम बन जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि बॉन्ड होगा वीक। तो इसीलिए इसने बोल दिया भाई हाइड्रोजन तुमको बॉन्ड बनाना है तो प्योर पी के साथ बनाओ, और अगर नहीं बनाना है तो अपना रास्ता देख लो। तो हाइड्रोजन तो है बेचारा गरीब इंसान, तो वो बोला ठीक है चलो बॉन्ड बना ही लेते हैं प्योर पी से। तो वो प्योर पी से बॉन्ड बना लेगा, तो इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल भी काफ़ी कम होगा, काफ़ी लेस, वेरी लेस। इसका बॉन्ड एंगल भी काफ़ी कम होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ठीक है, अभी तक इतना ही ठीक है। तो हम काफ़ी बॉन्ड एंगल पर चर्चा कर चुके हैं एक क्लास के लिए। हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। पहले हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन फिर हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज कैरेक्टर, लोन पेयर का इफेक्ट डालता है बॉन्ड एंगल पे। फिर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम का साइज, साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइड एटम का साइज। और हम लास्ट में ड्रेगो मॉलिक्यूल पे भी थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कुछ खास किया है नहीं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।